today we have the owner of Faithful Tragedy and a music producer. His name is Anubhav. So I'll just dive into it and ask what is Faithful Tragedy. मतलब आप viewers को थोड़ा बताना चाहेंगे कि what is it about and how you got into producing music. Actually, Faithful Tragedy is a melancholy. What I think is कि जो sad music होता है वो सबसे ज़्यादा healing होता है. My art is always about a revolution against industrial, being organic and But be why who you only are. sad songs like? Because this is a sad world we live in. I think so. This is my point of view, which can be opposing to very happy go people. But I don't think life is all rainbows and like that. I think completely opposite of that. Organically, I have felt like people are afraid of their sadness or darkness. Like they want to patchwork their heart. ऐसा क्यों लगता है आपको? Because I have seen like you scroll through your social media, how much happy pics are there, but actually they are happy. No, I don't think so. They don't even put up with themselves to be themselves. Like they don't have courage to be. So I think my music heals that part. Okay. It's okay to be sad. Okay. Like it's okay to not know, like if you are doing new thing, you tend to be confused. It's okay. It's all right. My music is your pillow. Go sleep on that. Like take some time, go figure out. It's all new. We are in a new culture. Everything is evolving. Sometimes we just get cluttered in like what we are thinking. We don't tend to look for the heart. And I think finding your heart is everything in today's time. So what got you like ऐसा क्या thought था कि music ही produce करना है and there are other fields जैसा अभी behind the scenes when we were talking आपने बताया कि you were into poetry like आप poetry भी लिखते थे तो why only music like आप उस genre में भी जा सकते थे like why not any other field basically? I think music सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया मेरे को. आई थिंक मेरी लास्ट कॉल यही थी कि पेंटिंग करनी है या म्यूज़िक करना है. एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, मैं बताता हूँ. जब मैं क्या कहते हैं एज इन जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में तो देवर jingle auditions going on, right. And finally and I used to sing from school only. Like math की class होती है या even my teachers have put me like I used to be a class clown also. Like I am into like making people laugh, singing music. तो कभी भी होता है तो मेरे को टीचर खड़ा कर देगी कि हाँ खाली टाइम है तो भाई गाओ खसाओ लोगों को. तो ऐसे 12th में भी मैं एक जगह घूम रहा था ऐसे ही विदाउट एनी पर्पस, ऐसे चिल करने के लिए मैं घूम रहा था और वहाँ पे मैंने क्या कहते हैं एक ऑडिशन हो रहे थे तो आई participated and then they selected me for second round and then actually I realized यार सही तो गाता हूँ मैं और मेरे सारे दोस्त मेरे से ही सुनते हैं गाने. तो मतलब उस टाइम तक तो बहुत क्लोज थे, अभी सब अपने काम में बहुत बिजी हैं. ऑल द बेस्ट टू देम. तो मतलब ऐसा ही है कि क्या कहते हैं जब तक वो मेरे से गाने वाने सुनते थे तो आई एक्चुअली थिंक कि क्या कहते हैं मैं कुछ नया कर सकता हूँ इसके साथ. और मेरे पास है म्यूज़िक पहले से, मतलब मेरे को एक विजन है कि मेरा आर्ट कैसा होना चाहिए और थैंकफुली लाइक मैं सब कुछ वैसा कर पा रहा हूँ. अभी वो क्या कहते हैं जो मेरे को मैंने सोचा था कि मेरा विजन होगा वो एकदम असेंबल होके आ रहा है मेरे पास. ओके. सो एनी आर्टिस्ट और अ कंपोजर दैट यू वुड वांट टू वर्क विद? Oh, there are so many. In India, Amit Trivedi, A.R. Rahman, and outside it's Pink Floyd, Steven Wilson is like I was going crazy क्योंकि मैं अकेला ही कर रहा हूँ. जब सीधे मौत वगैरह भी नहीं थे, इंडिपेंडेंट म्यूजिक का कोई सीन ही नहीं था, तब मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि मतलब
एज इन मम्मी पापा को समझाना भी, पेरेंट्स को समझाना आज तक बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन दो मेरी मॉम खुद आर्टिस्ट है, लेकिन वो भी थोड़े ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं, मेरा बहुत अनट्रेडिशनल वे है काम करने का। उनका मतलब क्या टेक है इस चीज पे? they are supporting to their extent of thing, like we are still fighting like on and off daily basis कि पैसे क्यों नहीं आ रहे, मतलब पैसे का बहुत फैक्टर हो जाता है, क्योंकि there are things कि तुम्हारे लेबल्स जो हैं, जो छोटे लेबल्स हैं, वो तुम्हें इंडिपेंडेंट रखते हैं कि तुम म्यूजिक कैसा भी बनाओ, लेकिन तुम्हें जो पैसे देने का टाइम आता है, हर कोई, मतलब मेरे साथ बहुत बुरा सीन हुआ है। अभी मेरा स्पॉटिफाई का रेवेन्यू मेरे को आ रहा था, अभी मेरे को पता चला है कि स्पॉटिफाई भी थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ। तो मेरे साथ काफ़ी, जब भी मेरे को पैसे का ऊपर नीचे होता है, मेरे को बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। और क्या कहते हैं, मतलब वो सपोर्टिव है अपनी तरह से, लेकिन एज आई सेड कि दिस इज न्यू वाटर्स फॉर मी टू। तो मैं भी अपने आप को गाइड कर रहा हूँ। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में चला जाता हूँ इस चीज़ को लेके, कभी कभी मैं बहुत इमोशनल होता हूँ, लेकिन एट द लास्ट ऑफ द डे कि यही है कि हम सब साथ ही हैं, मतलब एज इन वो बहुत सपोर्टिव हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स जो ब्राउन पेरेंट्स हैं वो तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, और मैं खुद भी बहुत पुशिंग हूँ बाउंड्रीज को लेके, मतलब रियलिटीज़ को लेके भी। अच्छा, सो अभी आपने बताया लाइक एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू get revenue. So on that part for our listeners also जो upcoming music में interest है या जाना चाहते हैं, तो any piece of advice जो आप उनको देना चाहो, जो it can be a precaution or like an advice to them जो आप उनको बताओ? Yeah, look out for like there are playlisting with शॉर्टकट तो नहीं हो पाएगा, मतलब शॉर्टकट का वो है। मेरे साथ भी क्या सीन है, मैं अपना बता रहा हूँ, जो मेरा पर्सपेक्टिव लाइक मेरा पर्सनैलिटी है, आई एम नॉट इनटू कनेक्टिंग दैट मच। ओके, I just vibe with people who vibe with me naturally. I am not that person who will like, मैं थोड़ा सा एंटी उस चीज को लेके कि क्या कहते हैं, you don't vibe with like as in networking. What out there is all network. There is no talent. If you look for something, वो सब कुछ नेटवर्किंग से बन गए हैं, मतलब आई रिजाइन दैट टोटली। ऐसा क्यों मेरे को लगता है यू शुड वर्थ योर सॉल्ट फर्स्ट। अच्छा, कि क्या कहते हैं, इफ यू आर गोइंग इन म्यूजिक, गो 100%, डू 100% ऑथेंटिक म्यूजिक, एंड देयर आर एवेन्यूज। इफ यू गो इन ना, देयर आर एवेन्यूज लाइक they will reach out to you. जो भी आपका वाइब है ना, वो आपके वाइब से कनेक्ट करेगा। दिस इज साइंस, दिस इज प्योर साइंस। कि क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया कि नेटवर्किंग, लाइक सोशल मीडिया आल्सो इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, लाइक as a person wants everyone to know कि जैसे आपका भी ब्रांड है, you are also producing music, you want people to know what you're doing, right? So social media is a big part of it. It's a good tool. It's a good tool, but don't give your soul to that. I am saying that from my perspective. Don't give soul to that. Don't keep your soul in music. Keep these tools to locate yourself. Like even I create my art in vacuum. Like my shit is from my vacuum. Like what I want to say at that time, and nothing to do with the trend. But even then, once the art is complete, I look for the like what ads or new people who can listen to it. Right. At the last of the day, I also want people, and they like I've been blessed with that much. But don't give your soul to like only tools. Okay. Like don't go on like trend will keep on changing. Become a trend yourself. Like listen to your creativity, and then it could become like for a day or month or for a year or however span you are blessed with, like however work you have put in. Right. So अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी योयो हनी सिंह का, आई होप यू हैव वॉच्ड इट। Yeah. सो उसमें भी वो आई सॉ वन ऑफ हिज इंटरव्यूज, और उसमें भी वो बता रहे थे कि लाइक मैंने कभी
ऑब्वियसली हर कोई अपने दायरे से बाहर जाके सोचना चाहता है, करना चाहता है. तो आई गेट योर पॉइंट जब आप बोल रहे हो कि यू नो पुट योर सोल इनटू दैट एंड एवरीथिंग विल फॉलो. बट सो आई डू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. आप उस डॉक्यूमेंट्री से कोई एक ऐसी पार्ट जो आपने सीखी हो या रेजोनेट किया हो? उस डॉक्यूमेंट्री से आई रेजोनेटेड ऑन दैट पार्ट कि even if you have everything na, if you let loose on health, that's where my father comes in. He will be like, oh like health is the first most thing, man. Like he was on the top. Like he's a kind of person who is good with connecting. His art was like for Punjabi people it was fresh, but it have their core interest, like it coming from Punjabi language also. So he's a legend, no doubt. He turned landscapes industrially and that wise, but you can't maintain anything if you don't have your health. Like world was at his door for everything. He have everything, but the health thing that I took from that. Okay, so a following question to that, like जैसे डार्क म्यूजिक करते हैं तो लोगों को लगता है अरे भाई ये डिप्रेस्ड होगा या इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, यू नो, विच इज़ व्हाई ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ म्यूजिक. सो आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे थ्रू फ्रेंड्स, फैमिली कि भाई सैड ही क्यों कर रहा है, मतलब लाइक कुछ अलग हट के करो. सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट एंड मतलब लाइक आपको कैसा फील होता है उस टाइम पे जब लोग ऐसे बोलते हैं? बिकॉज आई गेट दैट पार्ट कि यू आर इन टू अ सर्टन काइंड ऑफ म्यूजिक. जैसे लोग आज टेक्नो सुनते हैं, ईडीएम सुनते हैं, मतलब सबका अपना अपना जॉनर है, अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं. So is there a story behind this or is it just like, मैं जानना चाह रही हूँ क्या ऐसी चीज़ है, मतलब लाइक जैसे ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स ने कभी तो पूछा होगा कि यार सैड सॉन्ग्स ही क्यों, मतलब लाइक but they know my personality, मतलब like what I say, जैसे डिफरेंट करना होता है. My different is sadness. मैंने हमेशा अपने आसपास खुशी गाने में, मतलब गाने ऐसे वैसा ही देखा है, और कुछ गाने मुझे बहुत डिप्रेस करते हैं एक्चुअली. मुझे आई एम अ बिग फैन ऑफ सैड सॉन्ग फ्रॉम जल, पिंक फ्लॉयड, स्टीवन विल्सन. ऑलवेज मोटिवेट, लाइक व्हाट मूव्ड मी आई पुट इन माई सेल्फ इन टू दैट. एंड हाँ, लाइफ में बहुत सारा डिप्रेशन है, मतलब क्या कहते हैं, एक्चुअली मेरी लाइफ में ही डिप्रेशन नहीं है, उनकी लाइफ में भी है. मेरा म्यूजिक शायद उन्हें तंग करता है इस वजह से कि मतलब मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और हमारा जो कल्चर है वो रिप्रेसिव है कि बोलो मत, ऊपर से खुश दिखते रहो. मैं उस चीज को लेके बहुत वैसा हूँ, मतलब एज एन रिवोल्यूशनरी मेरा वो पॉइंट है कि मतलब एज एन मेरे को फाइट करना है इस चीज को, तो मेरा म्यूजिक उस चीज को भी प्रीच करता है एक्चुअली. क्योंकि हार्ट ब्रेक सबका होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उसको दबा देते हैं कहीं ना कहीं, उसे सही से प्रोसेस नहीं करने. हाँ, प्रोसेस नहीं करने. क्या सोचेगी, क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे. मैं नहीं कह रहा कि बॉलीवुड की तरह ओवर ग्लोरीफाई करके दिखाओ, लेकिन प्रोसेस इट. इफ अब आपने स्टॉक लिया है मार्केट में, आपने अपना पैसा लगाया, अगर वो लॉस में जाएगा तो आपका पैसा गया, आपको बुरा लगेगा. करेक्ट. This is hard. Like if you have put heart into something, like even in art, जब मेरा अच्छा नहीं जाता, या मतलब एज इन मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, या मैं फील करता हूँ मेरा कहीं स्टक हो रहा है, तो बहुत बुरा लगता है, और उससे और आर्ट बनाता हूँ मैं. तो दिस इज अबाउट दैट, दिस इज अबाउट स्ट्रगल. क्योंकि हंस तो सभी के साथ ले रहे हैं, मतलब आइसोलेशन में जहाँ पे मैं बात नहीं कर पा रहा, या कहीं पे मेरे को लग रहा है कि सभी बिजी हैं, तो मेरे पास एक टूल है, मेरे पास अपना एक आर्ट है कि क्या कहते हैं, वहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ बिना फिल्टर के. तो इसलिए मेरे को ये बहुत लिबरेटिंग लगता है, और ये डिफरेंट भी है, मतलब होना चाहिए, मैं उसी को वॉइस दे रहा हूँ. ओके, सो बीइंग डिफरेंट इज ओके, इज व्हाट वी आर टेकिंग अवे फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. Being different or being
a visionary is all right now this is the best time to do it because you have all the resources. मतलब जो हमारे पूर्वज सोचते होंगे कि हमारे हाथ में एक चीज हो जिसमें हम सब कुछ बना दें. जैसे हनी सिंह ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये भी कहा था जैसे कि हम क्या है हम अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना चाहते. क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स वही कर रहे थे, उनके पेरेंट्स वही कर रहे थे. तो अगर कोई आर्टिस्ट कोई अलग से सोचता है कि भाई मुझे अपनी औकात से आगे बढ़ना है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था आई थिंक विद नेटफ्लिक्स, तो उस टाइम वो बता रहे थे कि मैंने ये सोचा था तो मेरे उनके पेरेंट्स ही सोचते थे कि यार ये औकात से बाहर सोच रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे, बट उसने वो करके दिखाया. मतलब कहने का मतलब ये गुड एग्जांपल ऑफ दैट. हाँ, विजन होगा तो आप आगे वो चीज कर पाओगे, बट यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ फर्स्ट. राइट. मतलब क्या सब कुछ और सब चीज तुम अगर अपने आप में मानोगे ना, जैसे बहुत लोग अब इधर उधर में मानते हैं, लेकिन पोएट्री ने मेरे को एक चीज सिखाई है, यू आर इन यूनिवर्स इन योरसेल्फ, यू आर अ पार्ट ऑफ इट. व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, बिग स्टोरी, short story, you are that. I relate to that because school time पे I used to write poetries like back then. मतलब कुछ because I was in a hostel and there of course you have your friends and there are people but आप वो बातें कर नहीं पाते. तो I used to like write journaling kind of like but that was to myself but only for but it helps. It does help. Like yeah.